नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंगांगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाए गए 8 चीतों में से 2 को अनिवार्य प्रतिवास के बाद अनुकूलन के लिए छोड़ा गया। बड़े बाड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा, बाकी चीतों को भी जल्द ही छोड़ा जाएगा बड़े बाड़े में, और सभी चीते स्थानीय वातावरण में ढलने के बाद है स्वस्थ और सक्रिय। निशी एलिट सोसाइटी के अध्यक्ष बेंगिया तोलुम ने अपर सुबनसिरी जिले के योमदो रीजन में फेस्टिवल ग्राउंड निशी फेस्टिवल लापांग का किया उद्घाटन। लोगों से समाज के हित में कार्य करने और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने की अपील। लोअर सुबनसिरी जिले के याजाली में विंटर कार्निवल 2022 के अंतर्गत वेटरन फुटबॉल कप प्रतियोगिता शुरू। स्थानीय गैर सरकारी संगठन हैंगओवर इवेंट मैनेजमेंट टीम द्वारा आयोजित महीने भर चलने वाली इस प्रतियोगिता में 10 फुटबॉल टीमें ले रही है हिस्सा। नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाए गए 8 चीतों में से 2 को अनिवार्य प्रतिवास के बाद अनुकूलन के लिए बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि बाकी चीतों को भी जल्द ही बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी चीते स्वस्थ तथा सक्रिय है और नए वातावरण के अनुरूप ढल गए हैं। Under the cheetah relocation program, we have shifted 8 cheetah from Namibia to India, and these 8 cheetah were released in quarantine enclosures by our Honorable Prime Minister. Out of these 8 cheetah, 2 cheetahs have been released from quarantine enclosures to the bigger enclosures, where they will be given live feed. If we assess that their hunting capabilities and their adaptability in the bigger enclosures is as per protocol, they will be shifted to the open forest areas. As far as the 6 other cheetah which are still in quarantine enclosure is concerned, the officials of the NTCA of Government of India and the Madhya Pradesh Forest Department are there in Kuno today. They will assess their health situation and adaptability protocols, and if everything is okay as per the protocols, they will also be shifted to bigger enclosures within next 6 to 10 days. भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। निष्पक्ष चुनाव के लिए साझेदारी के तहत इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया। Affirmative agenda for democratic renewal and to tackle the diverse threats and challenges faced by democracies today throughout the election processes. Democracy cohort on election integrity is one such agreed action point under the aegis of which we are doing this conference. Excellencies, the role, framework and capacity of EMBs, a core building block for election integrity, is significant as it covers both the foundational and the functional aspects of any electoral democracy. Leveraging of social media for voter connect has been a positive feature. But at the same time, misuse of social media platforms for disinformation is a real challenge before EMBs, and it has very disruptive potentials. One of the most potent and present pressing challenge is the intersection of our functioning with the social media platforms. The social media platforms, though, do self-proclaim that they have content display policies in play, but we believe they obviously also have the algorithm power with them. Thus, a more early or deeper red flagging of fake news based on known modus operandi and genres is not an unfair expectation from the EMB side for the social media platforms. After all, it will only be credible electoral outcomes that will help preserve the freedoms which the social media platforms also thrive on, and that's the fundamental percept of the social media platforms, that they are intermediaries and provide expression, right to expression to the people. But that also needs to go through the algorithms to check the or red flag.
निशी एली सोसाइटी के अध्यक्ष बेंगिया तोलुम ने अपर सुबनसिरी जिले के यमदो रीजन में शनिवार को फेस्टिवल ग्राउंड निशी फेस्टिवल लपांग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तागिन कल्चरल सोसाइटी के लार्गी रिगिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। श्री तोलुम ने समुदाय के लोगों से समाज के हित में कार्य करने और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने की अपील की। तोलुम साहब सी आल दुइधो हमारा निसी फेस्टिवल लापांग यमदोरिजो में ये उसका फाउंडेशन पिलर को ये ले करने के लिए हमारा डॉक्टर बेंगिया तोलुम प्रेसिडेंट निसी एली सोसाइटी और हमारा श्री लार्जी रिगिया दुकम जो प्रेसिडेंट TCS यानी कि ये तागिन कल्चरल सोसाइटी दोनों ने आज आके इसको ये कर दिया, मतलब फाउंडेशन ले कर दिया। और उनका साथ में भी हमारा ये बुरीबुत येलो फेस्टिवल काउंसिल का एग्जीक्यूटिव बॉडी और सेंट्रल न्योकुम येलो का और सेंट्रल लोंगपे येलो का और निसी आर्ट एंड कल्चर वेलफेयर सोसाइटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी आज उपस्थित है। प्रगति की नई बुलंदियों को छू रहा नया भारत राष्ट्र निर्माण की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इससे और गतिमान करने के लिए भारत सरकार की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके अंतर्गत देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत भारत सरकार के 16 मंत्रालयों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है, जिससे रेल, सड़क, राजमार्ग, जलमार्ग एवं एविएशन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी अहम परियोजनाओं के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा। इससे जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कम समय लगेगा, वहीं संसाधनों का भी भरपूर उपयोग किया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट। प्रगति की नई बुलंदियां छू रहा नया भारत राष्ट्र निर्माण की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसे और गतिमान करने के लिए भारत सरकार की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत भारत सरकार के 16 मंत्रालयों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है, जिससे रेल, सड़क, राजमार्ग, जलमार्ग एवं एविएशन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी अहम परियोजनाओं के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा। इससे जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कम समय लगेगा, वहीं संसाधनों का भी भरपूर उपयोग किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 6 स्तंभ हैं। डायनामिक यानी गतिशील, कम्प्रिहेंसिवनेस यानी व्यापकता, प्रायोरिटाइजेशन यानी प्राथमिकता, ऑप्टिमाइजेशन यानी अनुकूलन, सिंक्रोनाइजेशन यानी तुल्यकालन और एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक। इन 6 स्तंभों के कार्यान्वयन के लिए कुशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए गुजरात के वडोदरा में स्थित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड कर इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। यहाँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, अप्लाइड साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रबंधन से जुड़े डिग्री और डिप्लोमा के कई नए कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिनका फायदा देश भर के युवाओं को मिलेगा। परिवहन सेक्टर से जुड़े शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल और शोध के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय सबसे बड़ा केंद्र होगा। इसके साथ ही इस विश्वविद्यालय का उपयोग रेलवे ट्रेनिंग सेंटर और स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी के रूप में भी किया जाएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय में रेल कर्मचारियों को प्रशिक्षण के दौरान अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। इसके साथ ही रेल परियोजनाओं के निर्माण के दौरान दूसरे क्षेत्रों जैसे सड़क, एविएशन, टेलीकॉम आदि के साथ किस प्रकार बेहतर समन्वय बनाया जाए, इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जाहिर है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से देश में विकास की रफ्तार तो बढ़ेगी ही, साथ ही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी देश आत्मनिर्भर बनेगा और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय। तवांग में शनिवार को दिवंगत जाम्बी ताशी के सम्मान में कैंडल लाइट मार्च निकाला गया।
पूर्व विधायक जाम्बिताशी की आत्मा की शांति के लिए ऑल मुंबई स्टूडेंट्स यूनियन और द ह्यूमैनिटी ग्रुप द्वारा तमांग मोनास्ट्री और बुद्धा स्टैचू के बीच आयोजित इस मार्च में बड़ी संख्या में सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया। सर्दियों का मौसम इंसानों से ज़्यादा जानवरों के लिए ख़तरनाक साबित होता है। इस मौसम में उनका ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। देश में सर्दियों ने दस्तक दे दी है। ऐसे में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र के प्राधिकरण ने जानवरों को कठोर सर्दी से बचाने के लिए कई तरह से काम करने शुरू कर दिए हैं। पेश एक रिपोर्ट। यहाँ ठंड से सिकुड़ा बैठा तेंदुआ आप देख सकते हैं। सर्दियों का मौसम इंसानों से ज्यादा जानवरों के लिए खतरनाक साबित होता है। इस मौसम में उनका ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। लगभग सर्दियों ने दस्तक दे दी है। ऐसे में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र के प्राधिकरण ने जानवरों को कठोर सर्दी से बचाने के लिए कई तरह से काम करने शुरू कर दिए हैं। As winter is arriving, so we have to take utmost care of our inmates at CWRC, particularly elephants. For elephants, we usually use as a base stratum hay we use particularly, and to cover them we use blankets during this winter season because elephants are very prone to fluctuation in temperature in environment. अधिकारियों ने हीटर लगाए हैं, जानवरों के लिए कंबल उपलब्ध कराए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए 2 अक्टूबर को खोला गया। यहाँ हाथियों का खास ख्याल इसलिए भी रखा जा रहा है क्योंकि उद्यान में हाथी की सफारी शुरू हो गई है। Also, along with that, we have to take care necessary, especially we have to take care of inmate birds and reptiles. So we have particular ICU developed for them, where we can control humidity and temperature for them. We have 6 elephants, 2 rhinos, 1 buffalo, 5 leopards and 2 hornbills. काजीरंगा में वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र ने सर्दियों के दौरान 2 हाथियों के बच्चे को गर्म रखने के लिए कंबल उपलब्ध कराए हैं। आज से ही काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी सफारी भी शुरू हो गई है। इस दौरान विशेष पूजा भी की गई। आप देख सकते हैं लोग हाथी सफारी को लेकर कितने उत्साहित दिख रहे हैं। हम लोग को रात में ही पता चला कि आज से ट्रिप शुरू हो रहा है, तो हम लोग ने फौरन बुक किया और बहुत अच्छा था, बहुत मजे आए। क्या देखा? राइनो देखा, बफेलो देखा, डियर देखा। राइनो तो बहुत सारा देखा, एकदम पास से देखा। बेबी राइनो देखा, डियर देखा, बोर्ड देखा। नेशनल पार्क में सफारी को पर्यटक खूब एंजॉय कर रहे हैं। लोअर सुबनसिरी जिले के याजाली में विंटर कार्निवल 2022 के अंतर्गत वेटरन फुटबॉल कप प्रतियोगिता शुरू हो गई है। स्थानीय गैर सरकारी संगठन हैंगओवर इवेंट मैनेजमेंट टीम द्वारा आयोजित महीना भर चलने वाले इस प्रतियोगिता में 10 फुटबॉल टीमें हिस्सा ले रही है। उद्घाटन समारोह में 90 के दशक में सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले वरिष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। चार साल के बाद फिर से ये हैंगओवर टूर्नामेंट यहाँ याजाली में हम लोग को देखने मिल रहा है। इसके लिए आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ में आज जो हमारे जो
वेटरन आज हमारे जो उस समय का उस दौर का 1970s 60s का जो हमारा सुब्रतो कप रिप्रेजेंट करने वाला अभी तक हमारा साथ जीवित है। तो उन चारों का नाम ये है जोरम लालिन, ताओ पेही, गेम तेरी, जोरम बोके। उन लोग के बाद में सुब्रतो कप वो चारों ने खेला हम लोग का एरिया से। उस समय तो हमारा एरिया नहीं है, आई थिंक उस समय सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से आप सुब्रतो कप रिप्रेजेंट किया है, वो आज भी जिंदा है। ईस्ट सियांग जिले के सेंट्रल गांगंग पासीघाट में स्टेट लेवल इंडिजिनस स्पोर्ट्स एंड गेम्स शुरू हो गया है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन इंजीनियर तापु दारांग ने किया। तीरंदाजी और खो खो प्रतियोगिता की विजेता टीम को अगले महीने यूपी कल्याण आश्रम में आयोजित होने वाले नेशनल लेवल इंडिजिनस स्पोर्ट्स एंड गेम्स में राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। अरुणाचल विकास परिषद के बैनर तले खो खो और तीरंदाजी प्रतियोगिता में 19 टीमें हिस्सा ले रही है। सिलेक्शन होगा यहाँ से। अभी तो आप लोग दो डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, लेकिन यहाँ से जो जीतेंगे वो शायद अरुणाचल को रिप्रेजेंट करके कहाँ यूपी में ना कहाँ में आप लोग का ये नेशनल लेवल का कंपटीशन होगा बोला है। इसलिए जो भी सिलेक्शन होगा उन लोग को हमारा तरफ से आशीर्वाद देना चाहता है। आप लोग एक से उधर में नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कीजिएगा जरूर। हम लोग का स्टेट का अरुणाचल प्रदेश का नाम हम लोग रोशन करेगा होगा उधर में जाके। ऐसे हम लोग का तो हम भी खुद स्पोर्ट्समैन था। 1917 में हम भी नेशनल लेवल में स्पोर्ट्समैन में हैदराबाद गया था। फिर संतोष कप में भी दिल्ली में हम खेला था। तो हम अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहे अरुण प्रभा। नमस्कार।